اسلام آباد اور بنیادی مراکز صحت میں بھی پولنگ ہوگی، تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ فیصل آباد ضلع بھر میں 63 علاج گاہوں میں پولنگ اسٹیشن بن سکیں گے، جس کی حتمی فہرست محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو بھجوا دی گئی ہے۔ شہری علاقوں میں واقع 8 گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریوں میں پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار کہتے ہیں 55 بنیادی مرکز صحت کو بھی پولنگ اسٹیشن بنایا جائے گا۔ 63 ہیلتھ فیسلٹیز کو جو ہے وہ الیکشنز کے دنوں میں انگیج کیا گیا ہے اور اس پہ الیکشن بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ اس میں ہماری کوئی 8 شہر کی ڈسپنسریز ہیں مختلف علاقوں کی، اور اس کے باقی جو ہیں وہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں۔ تو محکمہ صحت حکام کے مطابق ضلع بھر میں 167 بنیادی مرکز صحت موجود ہیں۔ 63 علاج گاہیں خالی کر کے عمارت الیکشن کمیشن کے حوالے کی جائے گی۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ عام انتخابات میں چند روز باقی، سیکیورٹی ادارے حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کے لیے کوشاں۔ عام انتخابات 2024 پولیس اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری، مکمل طور پر غیر جانبدار رہنے کے احکامات۔ سی پی او فیصل آباد محمد علی ضیاء نے تحریری احکامات جاری کیے۔ پولیس اہلکار سیاسی جلسہ یا ریلی میں ہرگز شامل نہیں ہوں گے۔ اہلکار اپنے اثر و رسوخ سے کسی کو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ سوشل میڈیا یا اشتہاری فلیکس پر بھی اہلکار اپنا نام یا فوٹو نہیں چھپوائے گا۔ افسران اپنے ماتحت اہلکاروں کو غیر جانبدار رہنے سے متعلق بریف کریں۔ الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ عام انتخابات میں چند روز باقی، توبہ پولیس کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کرنا چیلنج بن گیا۔ ضلع پولیس کے پاس حفاظتی سامان کی کمی، اعلیٰ افسران کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق ضلع میں پولیس اہلکاروں کو وائرلیس سیٹ کی کمی کا سامنا، جبکہ بیریئر، میٹل ڈیٹیکٹر اور خاردار تاریں بھی مانگ لی گئی۔ الیکشن کے موقع پر واک تھرو گیٹ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ پی پی 117 سے لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان اے بی سی روڈ یونین کونسل 149 پر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ارشد ناز نے سی سی 149 میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 117 میں شیر آج سے ہی جیت گیا ہے۔ یہ ارشد ناز کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سابقہ روایت ہے۔ وہ سابقہ روایت اللہ پاک ہمیشہ اس کی اسی طرح ہی جاری رکھے۔ آج پاکستان نہایت ہی مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ 2013 کے اندر بھی پاکستان انہی مسائل سے دوچار تھا۔ مہنگائی عروج پر تھی، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، آٹا نایاب تھا، چینی لائنوں میں لگ کر ملتی تھی، پیٹرول کی قیمت آسمانوں پر تھی۔ لیکن جب میرا قائد میاں محمد نواز شریف آپ کی ووٹ کی طاقت سے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا، اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک کر کے انہوں نے اس مسائل کا حل نکالا۔ 2013 سے 17 تک ہر غریب اور امیر آسانی کے ساتھ اپنا بجلی کا بل اپنی جیب سے ادا کر سکتا تھا، اپنا گیس کا بل آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا تھا، اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھ سکتا تھا، اپنے بڑوں کی خدمت کے لیے ہر طرح کے لوازمات پورے کر سکتا تھا، اور پاکستان دنیا کا ٹائیگر بننے کے لیے جا رہا تھا۔ لیکن کچھ اندرونی طاقتوں نے جن کو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا ٹائیگر بننا قابل قبول نہیں تھا، میرے قائد کو اپنے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر تاحیات نااہل کر دیا گیا، جس پر پاکستان کی ترقی 2017 کے اندر رک گئی۔ میرے قائد نے اپنا فیصلہ
अल्लाह पर छोड़ा और अल्लाह पाक ने एक एक करके इन झूठे मुकदमात में मेरे कायद को सुरखरू किया। पिछले 5 साला दौर में सिर्फ झूठ की सियासत की गई, नौजवानों को वर्गलाया गया, झूठ के अलावा और 5 साल कुछ नहीं किया गया। 50 लाख घर बनाए जाएंगे बताएं, और इतने बड़े पंडाल में से किसी को कोई घर मिला हो वो मेरा भाई हाथ खड़ा कर दे। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया और एक नौकरी पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी नौजवान को नहीं मिली। अब इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट की ताकत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की NA 100 में भरपूर इंतखाबी मुहिम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान NA 100 में भरपूर इंतखाबी मुहिम, जलसे जुलूस, कार्नर मीटिंग, इंतखाबी रैलियां। पंडोरी, जगतपुर, चक, त्रासी, गाला में जलसे। अहले इलाका की जानिब से भरपूर हमायत का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2018 में हमारी जमात की मकबूलियत छीनकर PTI की हुकूमत बनाई गई। बानी PTI ने 4 साल में मुखालफिन को जेल में डालने और मुकदमात बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। वो एक ऐसी हुकूमत बनी कि जिसके सरबराह का एक ही माटो था। उसने पहले दिन से यही नारा अपनाया कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों में डालूंगा। और यही काम उसने 4 साल किया। लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। महंगाई, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी से बड़ा मसला नहीं है, इसका मुल्क से खात्मा करेंगे। आपकी वोट और सपोर्ट से हल्के के मसाइल भी हल करेंगे। PTI सोशल मीडिया पर इलेक्शन लड़ रही है। इन्होंने फैसलाबाद में बातों से 6 अरब की लागत से यहाँ बाईपास बनवाया और कुछ बताने के लिए इनके पास नहीं। PTI बस एक फितना है। इस वक्त महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला दहशत गर्दी थी। ये जो है वो लोड शेडिंग से भी बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला है। इसको हल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने दहशत गर्दी का मसला हल किया और लोड शेडिंग का मसला हल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, हम 8 फरवरी को मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत बनी तो मुल्क से महंगाई खत्म करके तरक्की पर गामजन करेंगे। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के हल्का PP 117 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की बड़ी कामयाबी। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली नारू, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आम इंतखाबात में कुछ ही रोज़ बाकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के PP 117 से उम्मीदवार हैं ख्वाजा मोहम्मद रिजवान, जिनकी जानिब से ज़ोर व शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। बड़ी कामयाबी हासिल की है गुलबर्ग B में। मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से PP 117 के जो उम्मीदवार हैं ख्वाजा मोहम्मद रिजवान, उनकी हिमायत का ऐलान किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरकजी जमीयत अहले हदीस के काशिफ नवाज रंधावा मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, ऐलान किया है आपने हिमायत का, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अरसा दराज से इत्तेहादी हैं और मिलकर साजिद मीर साहब और मियां नवाज़ साहब इस मुल्क के फ़िक्र में हर वक्त कोशिश और काविश करते रहते हैं। इलेक्शन की आमद है। मुस्लिम लीग की हमायत के अंदर आज हमने अपने इंतहाई प्यारे भाई ख्वाजा रिजवान साहब को मौलाना यूसुफ अनवर साहब के घर तशरीफ़ लाए और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद हर लिहाज से इस प्यारे भाई, जिसे हम इस फैसलाबाद का सबसे फेवरेट उम्मीदवार करार देते हैं, इनकी हमायत का ऐलान किया है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 8 फरवरी को मौलाना यूसुफ अनवर साहब की दुआ की बरकत से ख्वाजा रिजवान साहब सबसे ज्यादा लीड लेके कामयाब होंगे। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान मेरे साथ मौजूद है। जनाब बताइएगा, बड़ी जमात की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया है, किन तासुरात का इज़हार करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग मौलाना यूसुफ अनवर साहब और मेरे बड़े भाई काशिफ नवाज रंधावा साहब ने जो यहाँ हमें मदऊ किया है और अपनी जमात की तरफ से आज हमारी मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान किया है। और ये हमने आज तय किया है, अहद किया है, तय भी किया है और अहद भी किया है
कि 8 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाना। बिल्कुल वजीर आजम बनाना मोहम्मद है। अली नारू हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पोलिंग डे में 8 रोज बाकी, फैसलाबाद डिवीजन में हर गुजरते दिन के साथ इलेक्शन मुहिम में तेजी आने लगी। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की इंतहाबी सरगर्मियां तेज हो गईं। नून लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की अलहरम में रजहाल आमद, ताजरों से खिताब किया। ताजरों से खिताब में ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि 2 फरवरी को नून लीग धोबी घाट ग्राउंड में तारीखी जलसा करने जा रही है। ताजर मुस्लिम लीग नून का साथ दें और मुल्क को अफरा तफरी से आजाद कराएं। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने रहीम टाउन में मुफ्ती उमर की रिहाइशगाह पर उलमा कराम से भी मुलाकात की। उलमा कराम ने ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की मुकम्मल। इस मौका पर इमरान ट्रेडर्स वाले मिर्जा काशिफ, सिटी नायब सदर मियां काशिफ महमूद पाशा और दीगर भी मौजूद थे। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान यूनियन काउंसिल 130 तलियां में भी चौधरी मकबूल के घर गए। इलाका मकीनों की मीटिंग में भी शिरकत की। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि घर घर पहुंचकर लोगों को मिलना मसाइल जानने का बेहतरीन तरीका है। शहरी 8 फरवरी को बाहर निकलें और रोशन मुस्तकबिल के लिए शेर पर ठप्पा लगाएं। हल्का पीपी 100 जड़ावाला से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार खान बहादुर डोगर दिन रात सरगर्म। डोर टू डोर इंतहाबी मुहिम, कॉर्नर मीटिंग्स, मेल मुलाकातें और राब्ते भी जारी। कई इलाकों से बरादरियों और ग्रुपों ने इलेक्शन में हमायत का ऐलान कर दिया। पोजीशन मजबूत होने लगी। सरदार खान बहादुर डोगर की चक नंबर 1 चट्ठा में कॉर्नर मीटिंग। चौधरी असलम, नईम असलम चट्ठा, चौधरी अदनान बड़ाइच, अदनान चट्ठा, चौधरी नवीद चट्ठा, शाहिद गारू ने हमायत का ऐलान किया। चक 570 कलसा में अरशद शाह महमूद, अशरफ बुजारी, मलिक जफर कालस, मलिक नजीर नंबरदार, अजीजुल्लाह बट्टू, मोहम्मद परवेज पटवारी ने अपनी बरादरी समेत खान बहादुर डोगर की हमायत कर दी। टोबा टेक सिंह की सियासत में जोड़ तोड़ में तेजी आ गई। इलाका में सियासी माहौल अरूज पर पहुंच गया। हल्का पीपी 121 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमजद अली जावेद ने पीटीआई को झटका दे दिया। साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया सईद अहमद और काउंसलर डॉक्टर यहिया समेत दीगर पीटीआई ओहदेदार मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। गोंदपुरा के मकीनों ने भी लीगी उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की इंतहाबी मुहिम भी जोरों शोर से जारी। नेट्री, ककुआना, मकुआना पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का गढ़ बन गए। पीपी 106 के मुख्तलिफ मुकामात पर चौधरी नवाज अहमद चीमा की मीटिंग जोर जल से। हल्का में भरपूर इस्तकबाल, फूल निशावर किए गए। चौधरी नवाज अहमद चीमा का कहना था कि अपने हल्का की आवाम के लिए 24 घंटे मुयस्सर हों। फैसलाबाद के हल्का पीपी 113 से उम्मीदवार मुजम्मल सरवर डोगर इलेक्शन मुहिम कामयाबी से आगे बढ़ाने लगे। एनए 101 से उम्मीदवार जनरल रिटायर्ड अकरम साही के साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स में शिरकत की। सीसी 46 से राना अदनान, इलियास गुजर, चक 204 रब से मियां अवैस, मियां सलीम और लियाकत मंजी ने भी ग्रुप समेत अकरम साही और मुजम्मल डोगर की हमायत कर दी। चक 199 गटवाला से आजम कासिम, फहराबाद में मलिक आरिफ और मंसूराबाद से मलिक सुफियान ग्रुप ने मुजम्मल सरवर डोगर की हमायत का ऐलान किया। फैसलाबाद के सूबाई हल्का पीपी 108 में आजाद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान की इंतहाबी मुहिम कामयाबी से आगे बढ़ने लगी। राना आफ्ताब अहमद ने मुतअद्दिद चकूक में अवामी इज्तिमाअत में शिरकत की। चक 276 जीम बे, 76 जीम बे, 66 जीम बे, 32 जेबी, 273 जीम बे, 271 जीम बे, 73 जीम बे, 81 जीम बे से बड़ी अवामी हमायत मिल गई। चौधरी अब्दुल हमीद एडवोकेट एसनुल हक ने ग्रुप समेत हमायत का ऐलान किया। जंग के सूबाई हल्का पीपी 127 में मौलाना मसरूर नवाज की इंतहाबी मुहिम। सेटलर टाउन से मौलाना मोहम्मद इलियास बालाकोटी ने मौलाना मसरूर नवाज की हमायत का ऐलान कर दिया। मौलाना मोहम्मद इलियास बालाकोटी ने कहा कि मसरूर नवाज का इलाके में कसीर तादाद में वोट बैंक मौजूद है, फतह करीब है। मौलाना मसरूर नवाज ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए जंग को तरक्की याफ्ता शहर बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौका पर अकाबरीन इलाका और नौजवानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। तांदलियावाला के हल्का एनए 97 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की इलेक्शन मुहिम भी जोर पकड़ने लगी। आईपीपी उम्मीदवार के एजाज में चक 432 काफ वे और 429 में कॉर्नर मीटिंग्स। हुमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल किया गया। पीपी 102 से उम्मीदवार सरदार सिकंदर हयात जुतोई भी हमरा थे। दोनों चकूक के मकीनों ने हुमायूं अख्तर की हमायत का ऐलान कर दिया।